Yes, welcome back. Good afternoon, children. In this week, we have first class with the continuity and differentiability. This is the very useful unit, dear children. Algebra is over till determinant. I think you all are finished the questions, including the miscellaneous exercise. My dear children, continuity is the basic fundamental for calculus. So first we discuss the continuous function and their exercises. So see, continuous function. If y equal to fx is a given function, ये आपको गिवन फंक्शन है जी. अब ये फंक्शन है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा. अब ग्राफिकल फंक्शन रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया. ये जो ग्राफ है, वेदर दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कंटिन्यूअस और नॉट, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ये ब्रेक तो नहीं हो रहा है. दिस इज द कंटिन्यूटी, दिस इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस. एट अ पॉइंट, सपोज एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, यू वांट टू चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट. y इक्वल टू fx का ये ग्राफ है. ये जानने के लिए हम कैलकुलस को यूज करते हैं. कैसे सर? फर्स्ट गिवन फंक्शन सच दैट first we have to find the value of the function. आपको ये डेफिनेशन अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखनी है विद डेट. वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a, दैट इज f ऑफ a. आपको x की जगह पर डायरेक्ट a सब्स्टिट्यूट कर देनी है. इसको वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलते हैं. दैट इज f ऑफ a इज डिफाइंड. ये डिफाइंड होना चाहिए. सेकेंड, लिमिट ऑफ द फंक्शन is exist. What do you mean of this? Whenever you have the limit x tends to a fx is exist, it means that there are two part of the limit, right limit and left limit, both are exist. That is right limit and left limit. इंडिकेट करने का जो सिस्टम है वो ये है. लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ a प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ a माइनस h. ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल आएंगी और डिफाइंड आएंगी. मीन्स एक कांस्टेंट आएगा l डिफाइंड. ऐसा नहीं कि ये नंबर जो हो वो नॉट डिफाइंड आ जाए, बोले सर लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी. सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज defined, limit of the function is defined, as well as the first and second numerical value are equal. That is, the value of the function is equal to limit of the function. So the third point is f of a equal to limit h tends to 0, f of a plus h equal to limit h tends to 0, f of a minus h. Then the function is called continuous at x equal to a. तब हम फंक्शन को continuous बोलते हैं. Then fx is called continuous function at x equal to a. So what should be the working law? Working law is this: जिस पॉइंट पर हमको लिमिट फाइंड कंटिन्यूटी चेक करनी है उसके राइट में से दिस गैप इज h, उसके लेफ्ट में से दिस गैप इज h, दिस इज a माइनस h एंड दिस इज a प्लस h. ये दोनों राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट हम निकालते हैं एंड दे आर सेम, मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज सेम एंड डिफाइंड. देन वी से ओनली द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ continuity, that is continuous function. Now we have some properties of continuity. We discuss them. कंटिन्यूस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं.
वो हम डिस्कस करेंगे। There are some properties. Algebra of continuous functions, see the page 156. Theorem first. If fx and gx are two continuous functions, at x equal to a, then first fx plus gx is continuous, मीन्स कंटिन्यूस फंक्शन का सम कंटिन्यूस होगा किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। इट मे बी इन इंटरवल ऑल्सो, यदि आप किसी इंटरवल में चेक करेंगे तो इंटरवल में भी होल्ड होगी। सेकेंड, the difference fx minus gx is continuous at x equal to a. Third, their product fx into gx is continuous at x equal to a. Fourth, fx upon gx, where gx is never equal to 0, is continuous. These are some special properties. No need to prove them. You use directly, ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे। There is another property, composition of functions. कुछ खुजला सा रहा था। There is composition, that is fourth. If they are real function, fifth, f g composition f and f composition z are also continuous at x equal to a. If they are real function that is f R2R and z R2R, then their compositions f composition g and g composition are also continuous. These are some properties, please write down. ये लिखिए, इनको लिखिए। प्लीज राइट डाउन, लिखिए इनको। यस, डू इट, जल्दी करिए। So whenever you have two functions, they are continuous. Remember their sum, their difference, their product, their division, their composition, all are continuous. Okay, over.
Now we start the exercise. See the exercise. The exercise is फाइव पॉइंट वन. क्या नहीं समझ आ रहा? पढ़ते नहीं आता क्या? एक्सरसाइज 5.1. See the first question. Prove that the function f of x equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and at x equal to 5. At x equal to 0, at x equal to minus 3 and at x equal to 5. There are three problems. One of them I want to discuss with you. Suppose I will solve at x equal to 5. मैं यदि 5 पर डिस्कस करता हूं तो रिमेनिंग 2 आप करोगे. 5 लिख लीजिए. 5 के राइट में आप पॉइंट लोगे 5 प्लस एच, 5 के लेफ्ट में लोगे 5 माइनस एच. राइट लिमिट में h टेंस टू 0 लिखना. h ये पहले लिख लिया करो. सो दिस इज द गिवन फंक्शन. फर्स्ट यू से वैल्यू ऑफ द फंक्शन. वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज at x equal to 5, that is f5. 5 into 5 minus 3, 25 minus 3, that is 22. Equation number A. Then right limit. Limit h tends to 0, f of 5 plus h. याद रखना, राइट लिमिट के लिए 5 प्लस एच रखिएगा, लेफ्ट लिमिट के लिए माइनस एच, 5 माइनस एच. हियर इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0. द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 5x माइनस 3. हियर यू हैव 5 ऑफ h, 5 प्लस एच, मतलब x की जगह आपको 5 प्लस एच लिखना है माइनस 3. अभी लिमिट फाइंड करने के लिए अपॉन में 0 आएगा तब आप एलिमिनेट करोगे. अपॉन में 0 आ नहीं रहा, मी से h की जगह 0 रखिए. मी से हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, दैट इज 25 माइनस 3, दैट इज 22. यही राइट लिमिट. सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट द लेफ्ट लिमिट. डू इट. चलिए करिए. ऐसे ही लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करिए. ऐसे ही जैसे राइट लिमिट कैलकुलेट किया, लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करें आप. हो गया. जैसे राइट लिमिट कैलकुलेट किया वैसे ही लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करिए. क्या आ रहा है? 22 आ रहा है क्या? यस. पटेल आ गया. श्रुति पटेल, मिश्रा, अपूर्वा, पीछे आ गया ये.
लेफ्ट लिमिट चेक करिए, ऐसा लिखा होगा आपने, लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट लिमिट के लिए 5 माइनस एच लिखेंगे। फंक्शन की डेफिनीशन 5x माइनस 3 में x की जगह आप 5 इंटू 5 माइनस एच प्लस 3 था कि माइनस 3, देन h की जगह 0 रखो, so 25 minus 3, that is 22. This is C. C, the value of the function is 22. Right limit is 22. Left limit is 22. All are equal. It shows the function is continuous. So how you will write? Thus, equation A equal to equation B equal to C, that is f of 5, that is value of the function, equation number B, that is right limit of the function, and equation C, that is left limit of the function. All are equal, defined 22. It means that fx is continuous at x equal to 5. Similarly, you try to solve this 3 times at x equal to 0, value of the function निकालिए, right limit, left limit, at x equal to minus 3, second part, और third मैंने कर दिया. Please try to write at least 1 लिखिए. मैं आपसे Google Meet पर मीटिंग जो करूंगा उसमें आपकी कॉपी देखूंगा स्क्रीन शेयर करके, इसलिए प्लीज़ इसको ज़रूर करें आप. डू इट, एक पार्ट ज़रूर करें. पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें, फिर राइट लिमिट, फिर लेफ्ट लिमिट, एट एक्स इक्वल टू 0 कुछ लोग करिए, कुछ लोग एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 करिए. सिलेक्ट कर लीजिए आप. यस, घर में आप क्वेश्चन करोगे लाइक दी मूवी, आपको पिक्चर जैसे वीडियो नहीं देखना है, क्वेश्चन करना है. करिए. मैं आपके पेरेंट्स से ये फीडबैक लूंगा ड्यूरिंग क्लास. आप केवल वीडियो लेट के देखते रहते हैं या बैठ के, कि साथ में करते भी हैं. मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, व्हाट आई फील मैं यहाँ पढ़ाता हूँ कंटिन्यूस. ये 1 वे गेम चल रहा है, 1 वे ट्रैफिक जैसे चल रहा है. आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. देयर आर सम चिल्ड्रन, दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, अदर आर ऑब्जर्विंग द वीडियो लाइक द मूवी, लाइक द पिक्चर. ऐसा मत करिए, साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द टाइम. मैं कंटिन्यूस बोर्ड पर नहीं हूं, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं. प्लीज डू इट. आई थिंक हो गया होगा. नाउ द सिमिलर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 इज सिमिलर, वो भी आप ट्राई करेंगे. एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3. नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 3. examine the following function for continuity. But you see there is no such point is not given. Point आपको given नहीं है. It means that it is continuous for every value of x, that is every real number. So for you show the continuity of such type of function, you suppose at x equal to k, where k is any real number. Got it? And जैसे आपने फर्स्ट किया वैसे इसके सारे कर दोगे. थर्ड का बी वाला जो है वो 5 नहीं लोगे. मीन्स x इक्वल टू के, वट के नेवर इक्वल टू 5, क्योंकि 5 पर तो डिफाइन ही नहीं है. सी वाला नॉट इक्वल टू -5. डी वाला एट x इक्वल टू के, वेयर एफ ऑफ x इक्वल टू के माइनस x mod of x minus 5.
so it is also a continuous function, all are continuous. Similarly fourth one, फिफ्थ से आपको जो प्रॉब्लम मिलते हैं वो मिलते हैं कंडीशनल फंक्शन. सो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, I want to discuss the problem. They are begins with fifth problem. So question number fifth आप ट्राई करेंगे, मैं बताता हूँ. There are 3 points at which you want to show the continuity. Then sixth onward आप क्वेश्चन करेंगे. 6 से 13 तक सेम है. सो आई थिंक फर्स्ट करने से आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं जी? फोर्थ तक. फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12 सेम है. कोई भी एक क्वेश्चन आप ले लें. पहले फिफ्थ ही करते हैं, देन फिफ्थ के बाद 6, 7, 8 ऑनवर्ड करेंगे कोई एक. राइट डाउन द फिफ्थ प्रॉब्लम ऑन योर नोटबुक. लिखिए एक्सरसाइज 5.1 का फिफ्थ क्वेश्चन रीड करें जी. एफ एक्स इक्वल टू x if x is less than equal to 1, 5 if x is greater than equal to 1, if x is greater than 1. Continuous at x equal to 0, and x equal to 1 and x equal to 2. there are 3 points at which we want to discuss. At x equal to 0, at x equal to 1 and at x equal to 2. First we take x equal to 0. 0 पर लेना है तो 0 के राइट लिमिट निकालने के लिए 0 प्लस h, लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए 0 माइनस h लेंगे. Then this is the equation number 1. This is the equation number 2. See, at x equal to 0, 0 is less than 1. So which equation is applicable? First. अभी कंडीशनल फंक्शन आ गया. x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि मैं फर्स्ट डेफिनेशन अप्लाई करूंगा कि सेकेंड. जो x की वैल्यू है वो 0 है और 0 1 से लेस होता है. दैट्स वाई फर्स्ट इक्वेशन लगा. इसको मैंने फर्स्ट लेवल कर लिया और इसको सेकेंड. अब फर्स्ट इक्वेशन से एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? x. यहां x कितना है? 0. दैट इज इक्वेशन नंबर ए. अंडरस्टैंड? अब बेटे राइट लिमिट निकालिए प्लीज. राइट लिमिट निकालने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, f of h. Here 0 plus h is very small quantity, so h is less than 1. That's why from equation first it is h only. लिमिट क्या आएगी सर? 0. v आ गया. अब आप लेफ्ट लिमिट निकालिए. l लिमिट, दैट इज लिमिट लेफ्ट लिमिट. लेफ्ट लिमिट के लिए कैसे लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, दैट इज, अब 0 माइनस h इज ऑल्सो लेस देन 1. ऑब्वियसली यस, सो इट विल बी 0 माइनस h, दैट इज माइनस h. 0 ही आया सर. C, all are equal. A, B, C, value of the function, right limit, and this is the left limit. All are equal. What we conclude? Thus, f of 0, limit h tends to 0, f of 0 plus h equal to limit h tends to 0, f of 0 minus h equal to 0. So fx is continuous at x equal to 0. हो गया सर. कैसे करना है समझ आया जी? So this shows the continuity
how you will check the function is continuous or not? To check it, we have to find the value of the function, right limit and so right limit and left limit. Clear? जीरो पर हो गया. अब 1 पर कैसे करेंगे सर? सपोज करिए 1 पर करना है. At x equal to 1. So here you have 1 plus h. Here you have 1 minus h. ये पहले ही मार्क कर लिया करो. अब आप बोलोगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन सर. फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. एट ट्राई करिए, स्टार्ट करिए. वैल्यू ऑफ द फंक्शन at x equal to 1. Which equation is applicable? First or second? Obviously first. क्यों? क्योंकि x की वैल्यू उसमें 1 हो सकती है. So f of x equal to x, that is f of 1 equal to 1. इक्वेशन नंबर A. ये हम लोग फिफ्थ का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं डियर चिल्ड्रन. पहले 0 के लिए हम लोगों ने चेक किया, अब 1 पर चेक कर रहे हैं. सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. नाउ राइट लिमिट, आर लिमिट, दैट इज राइट लिमिट, लिमिट h tends to 0 f of 1 plus h. Now you see, where is the 1 plus h? You know 1 plus h is greater than 1, is it? Yes, 1 में कुछ ऐड हो रहा है, भले ही h tends to 0 है, it is very small quantity, still 1 plus h is greater than 1. So which is applicable, which equation is applicable from second? Second कहता है for all x they are more than 1, the fx is nothing, it is a constant function and it is 5. मतलब इस 1 plus h की जगह क्या 5 आ गया. इसकी लिमिट निकाली तो 5. अब क्या लेफ्ट लिमिट निकालिएगा? क्यों निकालेंगे? जब हमारे लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं आई तो लेफ्ट लिमिट इक्वल भी आ जाएगी तो क्या कर लेगी? कंटिन्यूटी तो हुई नहीं, तीनों इक्वल होनी चाहिए. सो यू से सर f of 1 does not equal to limit h tends to 0 f of 1 plus h. Why? Since 1 is never equal to 5, so fx is not continuous at x equal to 1. x equal to 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है. सो व्हाट वी कंक्लूड दैट जहां फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही रहती है वो पॉइंट डेंजरस होता है. यहां 1 पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, एक जगह लेस देन इक्वल टू 1 है, एक जगह ग्रेटर देन 1 है, तो 1 पर कंटिन्यूटी डाउटफुल है. 1 से ग्रेटर दैट इज 2 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पर ये कंटिन्यूस आएगा. बिल्कुल सेम आप 2 पर कर लें, 2 पर हर बार 5 आएगा और 0 पर आपको हर बार 0 ही मिला. बट किस पर डाउटफुल आया? जिस पर डेफिनेशन ब्रेक होती है. तो ये क्वेश्चन पहले क्यों दिया? दी एनसीईआरटी बुक इज ब्यूटीफुल, उसमें आपको सारे कंसेप्ट दिए. फिफ्थ में ये इसलिए दिया क्योंकि बच्चे को ये पता रहे कि डाउटफुल कहां होती है कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी वहां डाउटफुल होती है फंक्शन की जहां डेफिनेशन ब्रेक होती है. अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आप पॉइंट नहीं देखा, पॉइंट नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि उसने आपको फिफ्थ क्वेश्चन में बता दिया कि डाउटफुल कौन सा पॉइंट है. तो 6th में आप कंटिन्यूटी काहे पर चेक करोगे? जिस पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है. गॉट इट? बाकी फंक्शन पर वो कंटिन्यूस हो, बाकी वैल्यू पर कंटिन्यूस होगा. मतलब 6th की जो कंटिन्यूटी डाउटफुल होगी वो काहे पर होगी? 2 पर. दैट्स व्हाई whenever you have such type of problem in examination where the point is not given at which you want to discuss the continuity, then you remember the point at which the function's definition is breaks, the point is doubtful. At that point you only check the continuity. Similarly you check at x equal to 2. ये तो हो गया जी, at x equal to 2. थर्ड पार्ट ये आप कर सकते थे. यहां क्या आएगा जी? 2 minus h, यहां 2, यहां 2 plus h. वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2. अब 2 जो है वो किससे ग्रेटर है सर? 1 से ग्रेटर है, तो यहां क्या आएगा? 5. वाई? सिंस 2 इज ग्रेटर देन 1, सो दैट्स वाई फ्रॉम सेकेंड ओनली. इसमें इक्वेशन सेकेंड लगा. अब राइट लिमिट बनाइए 2 plus h. 2 plus h इज ग्रेटर देन 1,
सो ये 5 ही आएगा, 2 + h इज ग्रेटर देन 5 आ गया, b आ गया। अब सर c बनाएंगे आप, लेफ्ट लिमिट, L लिमिट मीन्स लेफ्ट लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 - h, इट इज लिमिट h टेंस टू 0। अभी देखो जी 2 - h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट स्टिल इट इज मोर देन 1, सो फ्रॉम सेकेंड ओनली, इसमें भी सेकेंड लगेगा, दैट इज ये भी क्या आया 5 का लिमिट 5 ही आएगा c। इट मीन्स दैट f ऑफ 2 equal to value of the function, it is equal to f of 2 + h, it is equal to limit h tends to 0 f of 2 - h, all are equal to 5, so fx is continuous at x equal to 2. Got it, sir? This is the way by which you solve the fifth question. Fifth question is very useful to describe the concept of continuity. कंटिन्यूटी की एक डाउटफुलनेस होती है उस पॉइंट पर जिस पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है। इससे हमें यह पता पड़ गया कि हमको कब किस पॉइंट पर चेक करनी है। यदि मान लो इसमें पॉइंट नहीं दिया होता और वो कहते डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन बस दिया होता तो हम सब नहीं लेते, हम केवल किसको चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1। यदि एट एक्स इक्वल टू 1 पर यह हो जाता तो यह ऑलवेज कंटिन्यूअस होता। डाउटफुल यदि होता है कोई पॉइंट तो वो जिस पर डेफिनेशन ब्रेक होती है। क्लियर? डू इट, करिए। हो गया जी। अब सिक्स्थ ऑनवर्ड प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। आई थिंक आप ट्राई करोगे। मैं पॉइंट बोल दे रहा हूं किस किस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। फिफ्थ में जैसे 1 पर ब्रेक थी, सिक्स्थ में डेफिनेशन किस पॉइंट पर ब्रेक है, चेक करें किस पॉइंट पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। सिक्स्थ में 2 पर, सो यू विल बी डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। क्लियर? सेवेंथ प्रॉब्लम में देखें, मतलब सिक्स्थ में केवल एक पॉइंट पर डिस्कस करनी है, ऐसे ही सॉल्व करना है। सेवेंथ में आपको डेफिनेशन ब्रेक हो रही है -3 पर। काय पर सर? -3। सो यू विल चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 3। 2 पॉइंट पर आप चेक करोगे। सेवेंथ में 2 पॉइंट पर, 8 में एट x इक्वल टू 0, 9th x इक्वल टू 0, 10th x इक्वल टू 1, 11th एट x इक्वल टू 2, 12th एट x इक्वल टू 1, 13th एट x इक्वल टू 1, 14th 1 पर, 3 पर, 1 और 3 पर आप चेक करेंगे। देन 15th 0 एंड 1 पर चेक करेंगे। 16th -1 और 1 पर चेक करेंगे। 17th onward different question है, so I would like to discuss the 17th question. If you have doubt, आप सॉल्व करते हैं आप अपने ग्रुप पर, मैथ्स वाले ग्रुप पर, या फिर इसी के चैट बॉक्स में अपना डाउट वीडियो के चैट बॉक्स में लिख देंगे। मैं आपसे गूगल मीट की क्लास लूँगा, उस मीटिंग में आपसे डिस्कस करूँगा आपके डाउट और ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर करने का। प्लीज़ बेटे वी अलर्ट, आपको अभी इसी से फेमिलियर होना है। दिस इज़ दी वे ऑफ लर्निंग। आपको इस कोविड-19 जो आपका पेंडेमिक है इस टाइम में कोऑपरेट करना है और जो पढ़ाया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर मैंने आपसे कौन सा बोला? 17th तक
उसके पहले 16 तक आप ट्राई करेंगे तो बनेगा, डाउट आता है तो आप बोलेंगे। रीड करिए। Find the relationship between a and b so that the function f defined by fx equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3, if x is less than equal to 3, bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x equal to 3. देखिए बाकी पॉइंट पर वो बात ही नहीं करेगा। कंटिन्यूटी डाउटफुल होती है किस पॉइंट पर? जिस पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही, मतलब 3 पर। नाउ इट इज गिवन, सी ये गिवन है, इट इज नॉट मैटर ऑफ जस्टिफिकेशन वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 और नॉट। इट इज गिवन दैट द गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. सो यू से सर it is given that fx is continuous at x equal to 3. Therefore, f of 3 equal to limit h tends to 0 f of 3 plus h, it is equal to limit h tends to 0 f of 3 minus h. अरे बाबा ये कंटिन्यूटी गिवन है, इट मींस दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड लेफ्ट लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑल आर इक्वल. अब सी ये कब हो सकता है? फ्रॉम फर्स्ट. इसमें कौन सा डेफिनेशन लगेगा? फर्स्ट, क्योंकि x इक्वल टू 3 उसमें हो सकता है. 3 प्लस एच इज ग्रेटर देन 3, दैट इज फ्रॉम सेकेंड. इसमें सेकेंड डेफिनेशन लगेगी. 3 माइनस एच इज लेस देन 3, दैट इज वाई इट, इसमें फर्स्ट फंक्शन लगेगा, मीन्स फर्स्ट डेफिनेशन लगेगी. ये डेफिनेशन कैसे लगा है समझ आया? अब f3 की वैल्यू किस इक्वेशन से बनानी है? फर्स्ट से. ax प्लस v, तो बेटे यहां x की जगह 3 रख दीजिए. a इंटू एक्स, दैट इज x की जगह 3. इसमें सेकेंड x रिप्लेस विथ 3 प्लस एच सेकेंड से, तो आएगा b इंटू 3 प्लस एच प्लस 3. इसमें फर्स्ट ax प्लस 1, दैट इज a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1. ये इक्वेशन फॉर्मेशन आपको समझ आ गया. 3 फर्स्ट में हो सकता है तो x की जगह 3 रख दिया उसमें. x का वैल्यू 3 प्लस एच, दैट इज 3 से ग्रेटर है, तो सेकेंड b इंटू एक्स, एक्स की जगह 3 प्लस एच था वो रख दिया. x की जगह 3 माइनस एच, 3 माइनस एच इज लेस देन 3, सो फर्स्ट से a इंटू 3 माइनस एच. अब सर ये आ गया 3a प्लस 1 अपॉन में 0 है नहीं, डायरेक्ट h की जगह 0 रखिए, सो इट बिकम्स 3p प्लस 3, इट इज 3a प्लस 1. अब फर्स्ट एंड लास्ट सेम है, एक बार ले लीजिए. 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, इसको लिखने की जरूरत नहीं. देन इट इज so 3a plus 1 equal to 3b plus 3, then 3a equal to 3b plus 1 को ट्रांसपोजिशन कर दीजिए 2, 3 से डिवाइड कर दीजिए, a equal to b plus 2 by 3. दिस इज द रिलेशन. चेक रिजल्ट, ये रिजल्ट आएगा सर a equal to b plus 2 by 3 और 3a plus 3b equal plus 2. This is the answer. So how you solve this exercise? How you solve this exercise? You got it? Similarly, you have to solve the remaining questions of the exercise. आपको ऐसे ही remaining questions करने हैं. आप क्वेश्चन नंबर 18th, 19, 20, 21, 22, 23 ये सॉल्व करेंगे. See the unknown value 26, 27 to 30. They are the most important, especially 30. So please write your doubt. So we will discuss the doubt of your continuities problem in next class, and we will start the differentiability, that is chain rule. So जय हिंद, जय हिंद, जय भारत. टेक केयर, स्टे होम. डाउट आपको बताने हैं चैट बॉक्स में, आपको डाउट जरूर लिखने हैं. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाट डाउट लिखने हैं. और कमेंट्स बॉक्स में जाके यदि समझ आया तो प्लीज़ अंडरस्टैंड जरूर लिखें, और डाउट है तो लिखें. और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.